Hello everyone watching me right now. Today I am here with a new learning session for 8th standard students. It is a lesson taken from your second unit 2.43 Visions for India. But before starting the lesson, I just hope that you might have watched my last video which was on the poem Leisure. Please do check the links for the other lessons in my description box. Today, we are going to learn an inspirational lesson written by an inspirational person, and he is none other than डॉक्टर APJ कलाम. यस, अक्सर हम इन्हें डॉक्टर कलाम या डॉक्टर APJ कलाम कहकर पुकारते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम. The message of this lesson is not only worth learning but also worth inculcating in our lives. But before moving toward the message and the lesson, first let us get certain facts about Dr. APJ Kalam. He was born on 15th of October 1931 in Rameshwaran and took his last breath on 27th of July 2015 in Shillong. He was known as Indian scientist, the 11th President of India, and he served for our nation as the President from 2002 to 2007. He was also known as People's President and the Missile Man of India. He was honored with Bharat Ratna, Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Hoover Award, Hoover Medal, Veer Savarkar Award, and many more. And this lesson is actually taken as an extract in his inaugural speech, which was delivered by Dr. Kalam at the Indian Institute of Technology. Students, I will try to justify and explain his visions for India, but to do that, words are not enough. But I will try. So let's get started. I hope you are also eager to hear from Dr. Kalam. Dr. Kalam witnessed many adversities as well as progress, achievement of India in the history of India, as well as during his career as a missile scientist. He says that I have three visions for India based on, you can say, history of India, how it progressed from adversities to a developing nation. लेकिन ये विजन्स क्या है, उसे पढ़ने से पहले, उसे समझने से पहले we will get the meaning of vision. Vision क्या होता है? It means dream, an ideal, or in another words, we can say that ability to think about the future wisely. और उनके विजन्स क्या है? His visions are number one freedom, जिसे हम हिंदी में स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, आज़ादी भी कह सकते हैं. नंबर सेकेंड डेवलपमेंट, तरक्की, उन्नति या विकास कह सकते हैं. नंबर थर्ड स्टैंडिंग अप, दिस इज अ न्यू वर्ड, हमारे सामने एक ये नया शब्द है. स्टैंडिंग अप का मतलब तो कुछ और हमें पता है, लेकिन यहाँ पर स्टैंडिंग अप का मतलब क्या होगा? इट मीन्स टू सपोर्ट फॉर द नेशन ब्रेवली or to face the challenges bravely. Okay, and while stating his visions, his focus was on the development of India to its fullest potential and standing up with fully validated with a proof self-respect for our country India and its progress. Now next paragraph, further he tries to see that if we are not free, no one will respect us. It's very true student, isn't it? अगर हम फ्री यानी स्वतंत्र यानी आज़ाद नहीं रहेंगे तो कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा. Here he is reminding us that India had been looted in its 3000 years of history. यहाँ पर looted का मतलब क्या है? प्लंडर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ना लूट मार होना. सो हमारी अगर हम हिस्ट्री खोल कर देखेंगे तो इसमें हम क्या पाएंगे कि किस प्रकार हम गुलामी के जंजीरों में अटके पड़े थे. कई जो इन्वेडर्स थे, आक्रांता थे, उन्होंने हम पर राज किया. इट हैड बीन लूटेड नॉट ओनली फाइनेंशियली बट कल्चरली एज वेल. मैनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम एंड इन्वेडेड अस. इन्वेडेड का मतलब क्या है? एनक्रोच्ड. इन्वेडेड का मतलब क्या होता है? आक्रांता. हमारे भारतीय इतिहास की तरफ अगर
देखें तो हम पर आक्रांताओं ने कई वर्षों तक राज किया, गलत इरादों से लूटमार, तबाही मचाई। ये लूटमार सिर्फ पैसों की ही नहीं थी, बल्कि हमारे दिलो दिमाग पर भी कब्जा किया गया। और इस हद तक वे कामयाब रहे कि उन्होंने हमारी सभ्यता, संस्कृति, स्थापत्य कला को भी ललकारा था। उससे जुड़ी लोगों की भावनाएं, पहचान आहत करने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक वे उनके नापाक इरादों में भी कामयाब रहे। They captured our land too. Invaders from Greek, Portuguese, British, French, Mughal, Dutch came and took over what was ours. इन सभी ने जो कुछ हमारा था वो सब कुछ लूटने की कोशिश की, और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी रहे। लेकिन फिर भी हमने आज तक किसी पर राज करने के मंसूबे नहीं बांधे। किसी को गुलाम बनाने की नापाक तमन्ना या नापाक इच्छा यानी डिज़ायर हम में कभी जागृत नहीं हुई, और ना ही कभी होगी। क्योंकि आज़ादी क्या है, वो कितनी अनमोल है, ये भला भारतीयों से कोई अच्छी तरीके से जान सकता है। वी नो वॉट फ्रीडम इज़। हम जानते हैं, हम भारतीयों से बखूबी कोई नहीं जानता है कि फ्रीडम क्या है, आज़ादी क्या है। सो वी नेवर फोर्स आवर वे ऑफ लाइफ ऑन एनीवन। इसीलिए कभी भी हमने किसी पर भी हमारी जो शैली है, हमारा जो वे ऑफ लाइफ है, वो किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की। And thus he is trying to suggest that we must not repeat that dark history. So we must value our freedom and must not let other countries rule our India again. क्योंकि अगर हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे तो कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। अगर ये बात नहीं समझ में आती है तो इतिहास के पन्ने हमें फिर से खोल कर देखने पड़ेंगे कि क्या हमारा इतिहास था, हम किस प्रकार से एडवर्सिटीज से होकर गुजर कर हम एक डेवलपिंग नेशन हैं। पहली हमारी वो स्थिति क्यों थी, और आज हम जिस वजह से है वो वजह क्या है, उसे हमें स्टैंडिंग अप करना है, यानी क्या, उसे हमें सपोर्ट करना है। नाउ मूविंग टुवर्ड हिज सेकेंड विजन, it is development. My second vision for India is development. Dr. APJ Kalam says that for the last 50 years, India has been a developing nation, and earlier, student, we were underdeveloped, but now we are a developing nation, and very soon our dream of becoming a developing nation will be fulfilled, as we are among the top 5 nations of the world. In terms of what? In terms of GDP. हम टॉप 5 कंट्रीज़ में आते हैं। हमारा जो GDP है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये GDP क्या है? What is GDP? It is ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट शोज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द नेशन. So India is also getting noticed about its prosperity all over the world. हमारी जो पॉवर्टी लेवल है, यानी जो देश की गरीबी है, वो भी घट रही है। हमारे अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज किया जा रहा है, फिर वो चाहे स्पोर्ट्स में हो, टूरिज़्म में हो, कल्चरल सेक्शन में हो, एंटरटेनमेंट में हो, कॉमर्स में हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर में है, वॉट नॉट. वी आर परफेक्ट इन ऑल मैनर, बट अनफॉर्चुनेटली वी लैक द सेल्फ कॉन्फिडेंस. हमें क्या है? हमें आत्मविश्वास की कमी है. डॉक्टर कलाम सेज हम भारतीयों में सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास की कमी है. अदरवाइज वी ऑल आर परफेक्ट. आवर नेशन इज परफेक्ट इन ऑल मैनर. हमें वी लैक कॉन्फिडेंस कि हम और कुछ अच्छा कर सकते हैं. डेवलपिंग इस फेज से डेवलप्ड नेशन के फेज पर आ सकते हैं. सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं. अब ये सेल्फ रिलायंट क्या है? सेल्फ रिलायंट का मतलब है सेल्फ डिपेंडेंट, यानी हम किसी के ऊपर
निर्भर नहीं रहेंगे, हम आत्मनिर्भर रहेंगे। हमारी जो भी ज़रूरतें हैं, हमारी जो भी नीड्स है, उसे पूरा करने के लिए हम किसी भी दूसरे नेशंस पर डेवलप नहीं रहेंगे। जैसे आप अभी भी ये टर्म हमें सुनने के लिए आता है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं आत्मनिर्भर बनो, है ना। तो ये आत्मनिर्भर ही यानी क्या है, तुम्हारा सेल्फ डिपेंडेंट या फिर सेल्फ रिलायंस। We must trust and encourage Indian products. We must be proud of it, instead depending on other countries for each and everything. डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना है। जो हमारे घरेलू जो उत्पादन है, हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है, उसे हमें इनकरेज करना है। वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ इट। हमें उस चीज़ की शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। बट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हमारी मेंटालिटी, हमारी मानसिकता क्या है, हमने उसी फेस पर हम बार बार जाते हैं। हम गुलामी के जंजीरों में अब भी जकड़े हुए हैं, क्योंकि हम हमारे जो भारतीय उत्पादन हैं हम उसे इनकरेज नहीं कर रहे हैं। और जो हमारा पैसा है वो कहाँ पर जाता है, जब हम कोई चीज़ इम्पोर्टेड खरीदते हैं तो वो सारा पैसा वहाँ पर जाता है। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन द अदर कंट्रीज़ फॉर आवर नीड, वी मस्ट, हमें पहले तो अपने देश में झांक कर देखना है कि हमारे प्रोडक्ट्स क्या है और उसे हमेशा परचेज करना है। मूविंग अहेड, India must stand up to the world. Yes, this is the third vision of Dr. Kalam. As I explain you the meaning of standing up as support, he wanted to suggest us that we must stand up to the world, otherwise no one will respect us. हमें अपने भारत देश का समर्थन करना चाहिए, नहीं तो हमारी कोई भी कदर नहीं करेगा। We must support our nation in every aspect and make it powerful, not only in defense but also economically. हमें हर मायने से हमें एक पावरफुल कंट्री बनना है। पावरफुल का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मिलिट्री को देखा या फिर जो तुम्हारे आर्मामेंट से उसकी तरफ देखा तो तुम पावरफुल बन गए, नहीं। हर एक सेक्टर में हमें आगे जाना है। बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कोई सेक्टर बहुत आगे और कोई सेक्टर बहुत पिछड़ा हुआ है तो वो बैलेंस नहीं बनता है, वो कोऑर्डिनेशन भी नहीं बन सकता है। सो ही इज़ ट्राइंग टू सजेस्ट अस कि हमें ईच एंड एवरी सेक्टर में, हर एक चीज़ में हमें आगे बढ़ना है और हमारे देश को सपोर्ट करना है या उसे समर्थन देना है। मूविंग अहेड, इन द नेक्स्ट पैराग्राफ डॉक्टर कलाम इज आस्किंग अस व्हाई वी इंडियंस are so embarrassed to recognize our own strength and achievements. We are a great nation. We have our own success story to tell. Like, हमारी सक्सेस स्टोरी क्या है? डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि वी शुड नॉट अशेम। एम्बैरेस्ड का मतलब क्या है? टू फील शाई और टू बी अशेम्ड ऑफ समथिंग। हमें शर्मिंदगी होने की कोई ज़रूरत ही नहीं, हमें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्यों शर्मिंदा होते हैं बार बार? हम क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं हमारी उपलब्धियों पर? हमारी जो ताकत है, स्ट्रेंथ यानी कि हमारी जो ताकत है, हमारी जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स हैं, हम उसे पहचान क्यों नहीं पाते हैं? वी आर ए ग्रेट नेशन। हमारी एक अपनी सक्सेस स्टोरी है। जैसे डॉक्टर कलाम यहाँ पर कुछ उदाहरण देते हैं और वो कहते हैं वी आर the second largest producer of wheat and rice. कॉटन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आल्सो। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर आल्सो अहेड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस, पोल्ट्री एंड फिशिंग। नंबर वन पोजीशन, वी हैव नंबर वन पोजीशन इन मिल्क प्रोडक्शन। करेक्ट? तो ये कुछ हमारी उपलब्धियां हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देर आर सो मेनी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स दैट एवरी इंडियन शुड फील प्राउड अबाउट इट। नंबर वन इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, राइट? डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक clock which is used to navigation satellite to process the location data. Then talking about India's
first ever indigenous supercomputer, that is Param, which proved a milestone in India's technological journey. Then come मंगलयान, आपने सुना ही होगा इसके बारे में, राइट? मंगलयान हुआ या फिर चंद्रयान हुआ। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये उपलब्धियां हैं हमारे देश की। ये उपलब्धियां, हम क्यों इस पर गौर नहीं करते हैं? हम इसको रिकग्नाइज क्यों नहीं कर पाते हैं? इसे रिकग्नाइज करना और इस पर गौर करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अब मंगलयान के बारे में क्या है पता है आप लोगों को? आपने सुना है चंद्रयान जो है वो एक्सप्लोरेशन ऑफ मून के लिए भेजा गया था, एंड इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट स्टूडेंट्स इट एंटर इनटू ल्यूनर ऑर्बिट and it discovered the water molecules in the lunar soil. We have Hero Motor Corporation, which is the first largest manufacturer of two wheelers. क्यों बोलते हैं हम? We have इसके अलावा we have diversified cultural richness. ये सब तो उपलब्धियां हो ही गई, लेकिन इससे भी बड़ी पहचान अगर भारत की कुछ है तो वो क्या है? जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग कितने पीसफुली एक साथ रहते हैं और अलग अलग त्योहारों को हम मनाते हैं। हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को समझते हैं और उसे रिस्पेक्ट देते हैं। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री where many people follow different religion and culture. They belong to different community, they belong to different culture, but live peacefully following the democratic design. Correct? What do you think, student? Isn't it a kind of achievement? क्या लगता है आपको कि यह अचीवमेंट नहीं है? ये उपलब्धियां नहीं है? क्या आपको आपके देश पर गर्व है? आपको आप पर खुद के भारतीय होने पर गर्व है? अगर आपको मेरी कही हुई बातें ठीक लग रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको आपके देश पर और भारतीय होने पर गर्व है या नहीं। फर्दर, डॉक्टर कलाम is giving us an example of Dr. Sudarshan, who had transformed the tribal village into a self-sustaining, self-driving unit. Self-sustaining village या unit means a village which can satisfy its own need rather to depend on the other villages or the big towns. There are other millions of achievements of India, but Dr. Kalam complained that our media is obsessed only with bad news, failures and disaster. So he tries to say that media should show our achievements so that everyone should feel the positive vibes and learn many positive things, or they can also know the success story of our India. Now moving toward the next para. Do we not realize that self-respect comes with self-reliance? Self-reliance का मतलब आत्मनिर्भरता, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो. सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान. ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. जब आप आत्मनिर्भर रहोगे, किसी से किसी चीज़ की मदद की गुहार नहीं रखोगे, तो आपका जो आत्मसम्मान है वो बढ़ेगा. इट गोज़ हैंड इन हैंड. डॉक्टर कलाम आगे कहते हैं कि वो एक बार तेल अवीव में थे और उन्होंने एक इज़राइली न्यूज़पेपर को पढ़ रहे थे, जिसमें वो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार उस न्यूज़पेपर ने फ्रंट पेज पर एक ज्यूइश जेंटलमैन की सक्सेस स्टोरी के पिक्चर को पब्लिश किया. इस ज्यूइश जेंटलमैन ने 5 साल में एक डेजर्ट यानी जो मरुस्थल होता है उसे ट्रांसफॉर्म किया, तब्दील किया, चेंज किया ऑर्किड फार्म में, या वहाँ पर उसने हरियाली पनपने दी या फिर पनपने में वो कामयाब हुए. और न्यूज़पेपर के अंदरूनी यानी इनसाइड पेजेस पर जो नेगेटिव खबरें थी वो दिखाई या पब्लिश की, जैसे बम्बार्डमेंट्स,
ब्लडशेड, वायलेंस, डेथ, डिस्ट्रक्शन की खबरें अंदरूनी पेजेस पर उन्होंने पब्लिश की। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? फ्रंट पेज पर जो है उन्होंने एक ब्यूटीफुल हम तक मैसेज पहुंचाया, एक जूइश जेंटलमैन की सक्सेस स्टोरी को पब्लिश किया और उसी न्यूज़पेपर के अंदरूनी पेजेस पर पूरा डिस्ट्रक्शन भरा मैटर रखा। जब हम अखबार खोलते हैं स्टूडेंट, ऐसे अखबार को इस तरीके की जो स्टाइल है प्रेजेंट करने का, अगर ऐसे अखबार हम पढ़ेंगे तो आपको नहीं लगता कि पॉजिटिव वाइब हमारे अंदर आएगी? कि हम जब सवेरे उठते हैं, चाय की जब हम घूंट लेते लेते कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं, तो हमारे अखबारों में तो हम देखते हैं भाई कि पहला ही कुछ ना कुछ नेगेटिव खबर आती है, कुछ डिज़ास्टर के बारे में होता है, तो कहीं ब्लडशेड, कहीं किडनैपिंग, एक्सेट्रा, वायलेंस, मर्डर और एवरी काइंड ऑफ क्राइम, वही पढ़ते हैं। और उसी नेगेटिव खबर से अगर हम अपनी दिन की शुरुआत करते हैं तो ज़रा सोचना कि हमारा जो पूरा दिन है वो कैसे गुजरेगा। लेकिन अगर इस स्टाइल से अगर न्यूज़ दी जाए, जैसे फ्रंट पेज पर बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, तो दिन की जो शुरुआत है वो मेरे ख्याल से तो भी पॉजिटिव रहेगी। So here I'm not actually justifying that, I mean it's not like that कि bombardment, bloodshed वाली जो खबरें हैं having no importance, कि इसे importance नहीं है, ऐसा नहीं है। But the editor of that newspaper might be trying to spread beauty and positivity by burying the negative matters or newses inside the pages of the newspaper. So our Indian media must also try this kind of technique. They must also show the success story of our nation, because we have lot to tell the people, because we actually look forward to media. हमें मीडिया से बहुत उम्मीदें हैं, इसीलिए इस प्रकार की टेक्निक हमारे भारतीय मीडिया कर्मियों ने भी यूज़ करनी चाहिए। Now moving toward the last paragraph of this lesson, I want to leave in a developed India. Dr. Kalam poses here another question that we discussed earlier also, that why are we as a nation so obsessed with foreign things? हमें हर चीज़ important चाहिए, कपड़े, footwear, technology, each and everything. Why the obsession with everything important? Why don't we promote our Indian brands? Do not they sort our problem? Do not they serve our needs? Then why this false pride for foreign brands? हर एक चीज़ हमें imported क्यों चाहिए? If we think deeply on this issue of our incline toward foreign brand, definitely you will get the answer that we still do have mentality of slavery. हम अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। वी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द इन्वेडर्स, बट वी डिड नॉट seek independence from the mentality of serving everything foreign in nature. Self-reliance is equal to self-respect. We must follow this golden rule, golden formula to transform our nation from a developing to a developed one. This is the formula to get the golden sparrow again. India, भारत एक सोने की चिड़िया, अगर उस सोने की चिड़िया को फिर हमें चाहिए, वो चिड़िया सोने की हमें अगर वापस चाहिए, तो ये गोल्डन फॉर्मूला जो है सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा. Further, Dr. Kalam says that when he was giving his lecture in Hyderabad, a 14-year-old girl came and asked for his autograph. Dr. Kalam asked about her goal in life. The girl replied that she want to live in a developed India. उस लड़की ने डॉक्टर कलाम को क्या जवाब दिया कि वो एक अच्छे भारत में, यानी जो डेवलप्ड है उसमें रहना पसंद करेंगे. एंड दिस मस्ट बी द ड्रीम ऑफ एवरी इंडियन स्टूडेंट्स. व्हाट डू यू थिंक? सिर्फ उस लड़की का वो ख्वाब है क्या? नहीं, हम सबका ख्वाब है कि हम और तरक्की करें और विकास करें. हम एक डेवलप्ड नेशन में रहना पसंद करते हैं और पसंद करना चाहेंगे. एंड फॉर मेकिंग अवर नेशन अ डेवलप्ड वन, वी मस्ट टेक एन ओथ टू फॉलो द वे
हमें शपथ लेनी पड़ेगी टू फॉलो द वे शोन बाय द लीजेंड्स लाइक डॉक्टर APJ कलाम. And for that, we must be ready to see India with his vision. We must proclaim का मतलब क्या है? To declare confidently that we love our nation and we will protect it till our last breath. Yes, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हमें करके दिखाना है. हमारा हिंदुस्तान सबसे अच्छा है और इसे सबसे अच्छा बनाए रखना है. Students, I must tell you, when I was explaining this lesson from start till end, it was giving me goosebumps. I hope you got the message of this lesson. If you like the way I explained this lesson, please like it, share it, and please subscribe it for more updates. See you soon. Till then, bye. Vande Mataram.